Hello everyone. So I'm pretty sure that for any law entrance exam, everybody has to do a lot of current affairs. And current affairs का एक सबसे बड़ा part होता है which is static GK. So if you want to prepare static GK by yourself, the go-to book that generally I suggest is this particular book called the Lucent's GK or the Lucent's General Knowledge. Now, this is a very bulky book. We don't understand as to what to study from this particular book. There are so many chapters out there. So in this particular video, I will be helping you understand as to what should you read from this particular book and what sections can be avoided also, right? So there are 5 particular sections जो इस book में से आपको definitely पढ़ने ही पढ़ने हैं to be able to do well. Why? Because in particular section में से सबसे ज्यादा questions आए हैं in the previous year question papers of all the law entrance exams, चाहे वो CLAT हो, ALAT हो, 3-year entrance हो, कुछ भी हो. You are going to study these very properly if you're going to prepare for yourself. Okay. First important section here is the Indian history part. We all know that Indian history is divided into 3 categories: ancient, medieval and modern. तो आप chapter wise करना, you will find Harappan and Indus Valley civilization which is a part of the ancient history, और ये दोनों ancient Indian history के part है. गुप्ता मौर्य period, Harappan and Indus Valley civilization very important. इनका आपको अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए about the cities here, about the kings here, about what the expeditions did they do, what were the battles, why was it so relevant. We'll discuss all of these things here. Second, we'll move on to the medieval part of history, which is Indian history, which is the Delhi Sultanate, all the empires, going from slave dynasty, Tughlaq, Lodi, all the dynasties we have to do. So there are 6 dynasties. कुछ लोग 5 भी करते हैं कई बार, क्योंकि बीच में कुछ एक particular dynasty जो बहुत छोटी थी. But do all of them, है ना? It is important. दिल्ली सल्तनत में आपको जहां पर जो भी चैप्टर में दे रखा है उसको अच्छे से करो और आराम से करो. 1 chapter a day is also fine. Okay. Then we'll move on to the Marathas, one of the very important empires of medieval India again, very important to do. And Marathas के साथ साथ relevant हो जाती है मुगल empire. इन दोनों empires का जो time period था वो काफी clash किया था. मुगल empire को आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा बड़े part of India में you could say divided थी, है ना? It was majorly in North India also. And औरंगजेब की particularly बात करें तो वो southern India में भी गया था, where he had a lot of conflict with Marathas particularly. राइट, तो ये दोनों एम्पायर्स को अच्छे से करना बहुत रेलेवेंट हो जाता है. राइट, देन वी मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, व्हिच इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज बेसिकली एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स इन 1857 गोज ऑन टिल 1947, टिल द टाइम वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस. एंड एक मिसलेनियस सेक्शन है जो कि इन तीनों का, सॉरी, इन एक्चुअली सारे पार्ट्स का डिवाइडेड एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि आप मिसलेनियस में करोगे. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. समथिंग एज बेसिक एज कि भाई वहां पर कौन से पर्टिकुलर वाइसरॉय ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लाया था, है ना? व्हाट वर द मेजर लॉज दैट केम एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, व्हाट वर द मेजर पॉलिसीज दैट द यू कुड से मुगल एम्पायर केम अप विद, और डिफरेंट रूलर्स ऑफ सेवरल डिफरेंट एम्पायर्स केम अप विद. तो ये सारी जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स है, ये इंडियन हिस्ट्री की रेलेवेंट एस्पेक्ट्स है. इनको हमको पूरी तरह से कवर करना है. ठीक है, यू कैन टेक अ वीक टू कवर इंडियन हिस्ट्री एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट प्लीज डू ऑल दीज चैप्टर्स, डू नॉट स्किप एनीथिंग आउट ऑफ देम. मैंने आपको बिल्कुल खींच कर दिया है सब कुछ. आई एम नॉट गिवन यू एनीथिंग एक्स्ट्रा हियर. ओके, मूविंग ऑन, सेकंड पार्ट व्हिच इज वर्ल्ड हिस्ट्री. अब वर्ल्ड हिस्ट्री में इन योर 9th स्टैंडर्ड probably you all of us have studied फ्रेंच रेवोल्यूशन. आई होप यस, है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन को वापस से हमें ब्रश अप करना है. यू कैन डू दिस फ्रॉम द लूसेंट्स जीके आल्सो. उसके अलावा अगर आपने 11th और 12th में, if you had history, you would have done a lot of other aspects of world history as well. If you did not have history or you did not have humanities at all, that's also completely fine because अब कर लेंगे. तो रेनेसॉ पीरियड आया था यूरोप में, है ना? which is basically considered period of progressiveness, जब you could say काफी सारी ऐसी पॉजिटिव चेंजेस हुए थे जिनका इफेक्ट हमको आज तक दिखता है. Then came the industrial revolution in Europe where they started producing at a mass scale. आपने देखा होगा कि a lot of people you could say denote that the colonialism around the world, जो फ्रेंच colonialism था या ब्रिटिश colonialism था, that is also because of the industrial revolution. इसके बहुत aspects आपको मिलेंगे, but हम concentrate करेंगे only on the important facts because that is relevant at this point in time for the examination point of view. Right? Moving forward, Russian Revolution, Nazism in Germany, and the miscellaneous section of this part as well. Okay? So French, Russian, as well as Nazism in Germany, these 3 becomes very important aspects. ठीक है? बहुत अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग चीजें हुई हैं यहाँ पर. फ्रांस के इश्यूज अलग थे, रशिया के इश्यूज अलग थे, नाजी जर्मनी के इश्यूज अलग थे, एंड वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट इन सम डिटेल. ओके, यू कैन गेट सम वेरी गुड क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. एंड उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हम डेफिनेटली करते ही करते हैं.
है ना, जैसे समथिंग लाइक अ कोल्ड वॉर, है ना, कोल्ड वॉर कई सालों तक चला, है ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट, राइट। समथिंग लाइक लेट्स से मिसलेनियस में, ऑल्दो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के मिसलेनियस में नहीं होगा, बट वी शुड नो अबाउट द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, we should know about the League of Nations, we should know about the United Nations, right? All of these things are very very important. तो वो चीजें हम अलग से जरूर करेंगे, right? I do that in my classes also, right? If you're interested, you can genuinely come to my classes. These things get very easy because आप क्लास में काफी मेजर पोर्शन कर लेते हो जो शायद इन बुक्स में भी नहीं दे रखा है कई बार, and then we're able to, you could say, apply that very properly, right? You can always visit 12minutes2class.com. यहाँ पर आपको मेरे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, and you can genuinely start preparing with me as well. Okay? Then Indian polity and constitution. So for every law entrance exam other than NLSAT 3 year, legal reasoning के आपको proper chapters और proper concepts पढ़ाए जाते हैं. One of that concept or one of that topic subject is Indian constitution. ये सारे जो topics है ना, constituent assembly, different sources, important amendments of the constitution, fundamental rights and duties, Supreme Court, constitutional terms and what not, ये सारी चीजें करना हमारे लिए रेलेवेंट है फ्रॉम लूसेंट जीके ऑल्सो। बिकॉज क्या होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, तो यू स्टडी अ लॉट ऑफ इट, हम बहुत इंपॉर्टेंट केसेस करते हैं, वी ऑल्सो डू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी डू सम वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, बट you have to understand that when we do it from a static GK point of view, we don't have to remember a lot of things, but we really need to remember a lot of facts. जैसे मान लो different sources हो गए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फंडामेंटल राइट्स कौन से सोर्स से लिया गया है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स पूरा, बट वी आर नॉट एबल टू स्टिल आंसर सच क्वेश्चंस, राइट। तो पॉलिटी पार्ट में से ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को, ये 6 एस्पेक्ट्स को हमें जरूर करना ही करना है, विदाउट एनी डाउट हियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मिसलेनी। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हो, मिसलेनी के करीब 70 to 80 पेजेस है लूसेंट जीके में, प्लीज कंप्लीट ऑल ऑफ इट। Another very important thing to keep in mind is whenever you do the miscellany section, this has to be done from the latest version of the Lucent GK. I'll tell you why. Because miscellany में क्या दे रखा होता है? Let's say there's a chapter on highest, longest, largest, smallest in the world. Okay? So let's say they're asking you which is the largest bridge in the world, or let's say highest motorable bridge in the world. अब वो change होता रहता है ना? हर साल, हर 2 साल में कई बार इंडिया ने कुछ ब्रिज बना दिया, किसी और कंट्री ने कुछ ब्रिज बना दिया, it keeps changing. So therefore this particular part of your static GK will not remain static all the time. So therefore you have to complete it from the latest version of Lucent GK. क्लास में हम करेंगे ही करेंगे, but if you're self preparing then please buy the latest version. और उसके अलावा ये सारी चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, नए अमेंडमेंट थोड़े बहुत आ सकते हैं, बट नथिंग मोर देन दैट। सेम वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, तो उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी और डाउट होता है कि हमको साइंस नहीं करना है क्या, हमको इकोनॉमिक्स नहीं करना है क्या, बिकॉज इनके भी चैप्टर्स दे रखे हैं, राइट। तो साइंस यू कैन स्किप ऑल टुगेदर, क्योंकि साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो ना, तो डूइंग द एंटायरिटी ऑफ साइंस डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए भी तो 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे साइंस स्ट्रीम से। तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग द एंटायर चैप्टर, जबरदस्ती अपना दिमाग लगाओगे उस पे। इट्स बेटर टू रिवाइज जो हमने ऑलरेडी कर लिया उनको ही वापस से, राइट। देन कम्स द इकोनॉमिक्स पार्ट। सी, इकोनॉमिक्स को मैंने यहां पर मेंशन इसलिए नहीं किया है बिकॉज इकोनॉमिक्स आपको पूरा लूसेंट्स में से नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू डू द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, दीज आर सर्टेन थिंग यू शुड नो। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन सी लॉ के अंडर आया था, हु वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, हु इज द करंट आरबीआई गवर्नर, आरबीआई की व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्या करते हैं वो लोग। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी शुड नो, है ना, बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो हम क्लास में भी कर लेते हैं, वो जनरली डिस्कशन में वी विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। तो ये आपका लूसेंट जीके का पूरा सिलेबस रहेगा, एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस अगेन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। कीप वर्किंग ऑन दिस, इट्स अ वेरी यूजफुल बुक। और अच्छा, बाय द वे, इफ यू डू नॉट हैव लूसेंट जीके, आपके पास कोई और किताब है स्टैटिक जीके की, आपको यही वापस से सेक्शंस उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लूसेंट जीके में दे रखे, हिस्ट्री इज हिस्ट्री इन एवरी बुक। तो अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है, दैट्स आल्सो कंप्लीटली फाइन, आप इन चैप्टर्स को अपनी बुक में भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। इट्स कंप्लीटली फाइन दैट वे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी इन माय क्लासेस, कीप वर्किंग, कीप रीडिंग दिस वन चैप्टर एट अ टाइम, but don't miss out on it because you can genuinely get certain questions here and there going forward from this particular part, which is static GK. All the best guys.